Good morning, children. Today, let's start chapter 14 of your English literature. The name of the chapter is the Coromandel fishes. Children, here is a term Coromandel. You know, children, the Coromandel is the southeastern coastline of India. And children, this poem is composed by Sarojini Naidu. Children, Sarojini Naidu was a famous writer of India. She was a great poetess of India. She fight for the freedom of India also. She was a freedom fighter, and children, she was a political activist and feminist and a great freedom fighter. And children, she was also the first lady governor of India. Now let's come to the poem. Now this is the poem, children, and this poem has three stanzas, and I will read the every stanza one by one. So children, the first stanza is: rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Children, as I told you all that the poet Sarojini Naidu was a freedom fighter, and here this is known that this poem mostly was through this poem, and the poet asks the fishermen. But children, it is also considered that Sarojini Naidu also asked to the people of the India, and she says to the people of India that rise brothers rise, the awakening skies pray to the morning. वो यहाँ पे क्या कहती हैं? Rise brothers rise, उठो ब्रदर्स उठो, द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट. जो आसमान सो रहा था वो भी अब क्या है? जाग गया है. और जो रात में काला था, द स्टार्स दैट वाज शाइनिंग एट द एंड दैट द स्काई दैट वाज ब्लैक, नाउ इट इज ब्राइट एंड वेलकमिंग टू द मॉर्निंग लाइट. जो स्काई, जो आसमान काला था वो भी अब क्या है? एकदम से क्या हो गया है? वाइट हो गया है, यानी कि उसमें भी रोशनी आ गई है और अब सोने का समय नहीं है, अब आप जाग जाइए. द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Children, you know, at the seaside, in the night wind blows very fast, but in the morning they goes down. The speed of the wind goes down, and she says that, you know, brothers, the wind that blows very fast in the night, but it also now goes down, its speed now goes down, so you also wake up. यहाँ पे जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं सरोजिनी नायडू जी, वो क्या कहती हैं कि अब समय जो है वो सोने का नहीं बचा है. तो यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने जो है इस पोएम के माध्यम से अपने देशवासियों को भी उस टाइम पे जगाने का काम किया है, जिस टाइम हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, जिस टाइम हमें जो है आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी. तो इस पोएम के माध्यम से वो ऐसा भी माना जाता है कि अपने देशवासियों से कहती हैं कि मेरे ब्रदर्स, मेरे भाइयों, अब जो है सोने का समय नहीं बचा है, अब आप लोग जाग जाइए. लेट अस गैदर आवर नेट्स from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Now she asks to the fishermen that come and let us gather our nets and collect your nets from the shore and set our catamarans. Catamarans is a kind of boat, and set your catamarans free. Now let's come and let's go towards the sea with your nets to capture the leaping wealth. To capture the leaping wealth. Children, you know what is the leaping wealth here? Here leaping wealth is fish.
यू नो वेल्थ हिंदी में अगर हम जानना चाहें, वेल्थ क्या होता है, धन होता है। तो यहाँ पे जो लीपिंग वेल्थ का मतलब अगर हम निकालें तो इसका मतलब निकलता है फिशेस से। तो सरोजनी नायडू जी कहती हैं टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। अब आप जाइए और जाकर अपनी जो वेल्थ है, हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो धन है, उसको कलेक्ट कीजिए। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, क्योंकि जो सी है उसका किंग कौन है, हम ही हैं। और हम लोगों को जाके क्या करना चाहिए, अपना जो हमारा वेल्थ है उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसको कैप्चर करना चाहिए। No longer delay, let us hasten away in the track of seagull's call. अब हमको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। Don't delay now and let's go towards the sea. Let us hasten away in the track of the seagull's call. Children, you know seagull's call here. Seagulls means, children, here seagulls is a fish eating word, and you know she asks to the fishermen that don't let the seagulls eat our food, don't let the seagulls eat our food, and let's go towards the sea and take your wealth. जाइए और जाकर अपना जो वेल्थ है उसको कवर कीजिए, उसको कैप्चर कीजिए और बिल्कुल भी अब डिले मत कीजिए। The sea is our mother, the cloud is our brother, the babes are our comrades all. Now she says that she is our mother. You know children, who is mother? Mother gives us food and mother provides us safety and the livelihood also. Children, you know now the poetess says that the sea is our mother. Sea क्या है, हमारी मदर है। एंड द क्लाउड इज आवर ब्रदर, और क्लाउड जो है क्या है, ब्रदर है। द बेब्स आर आवर कॉमरेड्स। बेब्स क्या है, बेब्स क्या है, हमारे कॉमरेड्स। कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस। कंपेनियंस क्या होते हैं, जो हमारे साथ चलने वाले होते हैं। तो बेब्स क्या है, जब आप बोट लेके कहाँ जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, तो वेव्स जो होंगी, लहरें जो होंगी, वेव्स मीन्स क्या होती हैं, लहरें क्या होंगी, वो हमारे साथ जाएंगी। तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। She asks to the fishermen that you are not alone. You go with your mother because she is our mother and clouds is our brother and babes are our comrades. You are not alone. You go with all these persons. What thou we toss at all, fall of the sun where he had of the sea God drives. Children, now she says that no matter if we toss, if we fall into the sea, अगर हम गिर जाएं, अगर हम उसमें क्या है, हमारी जो नाव है, हमारी जो बोट है, वो हमारा जो कैटामैरन्स है वो पलट जाएं, गिर जाएं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स, he who holds the storm by the ear will hide in his breast of our lives. तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो ऊपर वाला एक ही गॉड है सबका, वो गॉड क्या करता है, वो ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, जिसने स्टॉर्म को भी रोक रखा है बाय द हेयर, अपने हेयर से, अपने बालों से। मीन्स यहाँ पे शिव जी का सेंस आप निकाल सकते हैं कि जिसने पूरे स्टॉर्म को, पूरे तूफान को, सारे एक तरीके से सारे सागर को जो है रोक रखा है। विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट लाइव्स, वही हमारे जीवन का क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो इसमें अगर आप गिर भी जाते हैं, अगर आप उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ समुद्र में आपको क्या करना है, अपना जो है लीपिंग वेल्थ आपको अपना खोजना है, वहाँ रास्ते में जाते हुए अगर आपकी नाव पलट जाती है या फिर आपके साथ में कुछ गलत होता है, तो उसमें डरने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि गॉड जो है वो हमारी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमको बचाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द लास्ट स्टैंजा। स्वीट इज द शेड of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the scents at the full of the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the prey and the dance of the wild form's glee. Row, brothers, row to the edge of the worlds where the low sky meets with sea. Now she says, sweet is the shade of the coconut glade
एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, आप जहाँ रहते हो, जो शेड है आपकी, जो कुटिया कह सकते हो, हट कह सकते हो, वो कोकोनट ग्लेड की बनी हुई है और वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, और या जिस जगह आप रहते हो वो जगह भी क्या है, मैंगो ग्रोव है। वहाँ मतलब सेंट्स, सेंट समझ सकते हो आप, सेंट इज अ परफ्यूम, यानी वहाँ पे जो मैंगो ग्रोव हियर इज द ग्रुप ऑफ ट्रीज, मैंगो ट्रीज, वहाँ पे मैंगो ट्रीज का क्या है, ग्रोव है, एक तरीके से बहुत बड़े आपके लिए बाग हैं। एंड स्वीट आर द सेंट्स ऑफ द फुल ओ मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, और हम जिस चीज़ों को प्रेम करते हैं, जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सैंड भी है जो कि फुल मून लाइट में क्या होता है, बहुत ही शानदार दिखाई देता है, बहुत ही खुशहाल दिखाई देता है। बट जिन चीज़ों को इनको हम प्रेम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जिनको हम प्रेम करते हैं, जैसे स्वीट हो गया शेड, है ना, और सैंड ऑफ द मैंगो ग्रोव एंड स्वीट सैंड, ये सारी चीज़ें जिनको हम प्रेम करते हैं, ये चीज़ें क्या परमानेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये सब टेम्पररी हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली, रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ड्स वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। तो आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। स्वीट इज द शेड ऑफ कोकोनट ग्लेड, कोकोनट ग्लेड के स्वीट हट में आपको नहीं फंसना है। सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, इनमें भी नहीं फंसना है, यहाँ नहीं रुकना है एंड इनको प्रेम नहीं करना है। आपको क्या करना है, बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली, आपको जाना है टू किस द स्प्रे ऑफ द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली। आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली का मतलब है कि जब ज्वार भाटा आप देखते होंगे समुद्र में, कभी भी जब टाइड आता है तो टाइड के आने से बहुत सारी एक तरीके बब्बल्स बन जाते हैं, और बब्बल्स वो कहाँ जाते हैं, काफ़ी ऊंचे हाइट तक जाते हैं, तो उनको आपको टच करना है, उनका स्प्रे जब आपके ऊपर आएगा, स्प्रे लेना है, वही क्या है, यानी कि एक तरीके से आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, एडवेंचर करना है। एंड रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्स, वर्स हियर, वर्स मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं किनारा, क्या कह सकते हैं, किनारा, एज, आपको उस किनारे तक जाना है। आपको आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वो समुद्र में खत्म नहीं होती है, आपको किनारे तक जाना है। किस किनारे तक, वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, जहाँ स्काई कहाँ जाके, सी से मिलता है, यानी कि सामने बहुत दूर दिखाई देता होगा आपको, जहाँ समुद्र और आसमान बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी मेट्स, जहाँ पे समुद्र आसमान मिल जाते हैं, आपको उस किनारे तक जाना है। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वो रास्ते में खत्म नहीं होती है। चिल्ड्रन, आई होप you have understood all about the poem, and if you have any doubt you can ask me personally. Thank you children.